آج ہم جو خدا کے کلام سے سیکھنے والے ہیں، اس کے وچن سے سیکھنے والے ہیں، ایک سمے آپ اپنے اپنے بائبل اپنے ہاتھ میں ہولڈ کیجیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک بولیں گے، خداوندہ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ مجھے کلام کو پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ کلام میری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ جب جب یہ کلام میرے ہاتھ میں ہے، ابلیس میرے پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ یہ کلام میری زندگی کو بدلے، میری فیملی کی زندگی کو بدلے، میرے خاندان کی زندگی کو بدلے۔ میں برکت کو ریلیز کرتا ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، آج ہم جس ٹاپک پہ سیکھنے والے ہیں وہ ہے اشعیا ربانی اور مسیحی چال چلن۔ کیا ٹاپک ہے؟ اشعیا ربانی اور مسیحی چال چلن، the Lord's Supper and the Christian conduct۔ مطلب اس کا ہے شام کا کھانا، شام کے وقت کا کھانا۔ ہاللیلویا۔ اور جب ہم اشعیا ربانی میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم اس کھانے میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ فسح کا وہ کھانا ہے جس کو یسوع مسیح نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھاؤں۔ ہاللیلویا۔ اور یہ کھانا خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا تھا۔ اس نے فسح کھائی، اپنے لوگوں کو کہا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ مصر سے نکلتے وقت ہر سال تم یہ فسح کھایا کرنا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم کلیسیائی طور پہ شامل ہوں، اور یسوع مسیح نے اس کے ساتھ تصویر جوڑی ہے ایک۔ ہاللیلویا۔ کہ تم جب اسے کھاتے ہو تو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ یہ تصویر ہے کہ جب بھی ہم اس بدن کو، اس خون کو کھاتے ہیں تو کیا پاتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو۔ یہ ایک تصویر ہے کہ جب ہم اس اشعیا ربانی کو ریسیو کرتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں میں تم میں اور تم مجھ میں قائم ہو جاتے ہو۔ ایک تصویر ہے۔ ہاللیلویا۔ ہماری زندگی میں اشعیا ربانی کی تصویر ہمارے چال چلن سے آتی ہے۔ کس سے آتی ہے؟ ہمارے چال چلن سے جڑی ہوئی ہے۔ بلکہ ایک حوالہ نکال لیجئے، پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اس کی 27ویں سے 31ویں آیت۔ یس۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتھیرے، کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ بائبل مقدس کی بات ہے کہ ہمیں ایگزامن کرنا ہے، اپنے آپ کو آزمانا ہے۔ بائبل کی بات ہے۔ ہاللیلویا۔ سارے ذرا دھیان کریں ساری چیزوں کو سیکھنے کے لیے۔ میری طرف دیکھیے ایک منٹ کے لیے سارے۔ اب ہم کسی ایک دکان پہ جاتے ہیں، اس دکان کے اندر ہمیں واٹ ایور سیب، کیلے، امرود جو بھی ملتا ہے۔ اب ایک بندہ جاتا ہے، اس کو پیسے دے کے خریدتا ہے۔ ایک بندہ جاتا ہے، اس کو پیسے دے کے خریدتا ہے۔ اب اس کی لائف میں اس کی برکت ہے کیونکہ اس نے جائز طریقے سے اس کو ریسیو کیا ہے۔ اب دوسرا بندہ اسی پھل کو
चोरी करके खाता है, अब उसकी जिंदगी में तस्वीर क्या होगी? उसको बरकत तो मिलेगी नहीं, लेकिन लानत का शिकार हो गया है। मतलब कि हमें जायज तरीके से और नाजायज तरीके में फर्क रखना है। हालेलुया। अब जब हम जायज तरीके से खाएंगे तो हम बरकत के हकदार हो जाएंगे। अगर हम नाजायज तरीके से चोरी करके खाएंगे तो बरकत तो आएगी नहीं, लेकिन लानत हमारी जिंदगी में आ जाएगी। इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। और 0% बरकत भी हमें नहीं मिलेगी उसके चोरी के फल खाने से। ये चीज ज़हन में रखिएगा। बल्कि कौन सी तस्वीर में हम लोग चले जाएंगे? लानत की तस्वीर के जिम्मे में आ जाएंगे और सजा के हकदार हो जाएंगे। और जब हम अशाए रुबानी में शामिल होते हैं, हालेलुया, ये रोटी भी वही है, ये प्याला भी वही है, ये थाली भी वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन इसकी तस्वीर हमारी जिंदगी में फर्क है। समझिएगा, इसकी तस्वीर हमारी जिंदगी में क्या है? फर्क है। अब फर्क कैसे हो जाती है? आप सवाल पूछ सकते हैं कि पास्टर जी, ले तो सारे एक ही जगह से रहे हैं, पी तो एक ही प्याले से रहे हैं, रोटी भी एक ही तोड़ी जा रही है, तस्वीर क्यों फर्क आ रही है? तस्वीर फर्क आ रही है आपके चाल चलन की वजह से। तस्वीर किस वजह से फर्क आ रही है? आपके चाल चलन की वजह से। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो कोई नामुनासिब तरीके से लेता है और उसे इसके खाने पीने से क्या मिलती है? सजा मिलती है। और जो कोई इसे मुनासिब तौर से लेता है, लायक तौर पर रिसीव करता है, जैसे लेने का हक है वैसे लेता है, तो उसमें जिंदगी आ जाती है। आमीन। मसीह के खून और बदन की तस्वीर आ जाती है आपकी लाइफ में। सो अशाए रुबानी की हमारी जिंदगी में तस्वीर हमारे चाल चलन से जुड़ी हुई है। हालेलुया। अशाए रुबानी में शिरकत हमें संजीदा और दुरुस्त सोच और रवैये के साथ करनी चाहिए। अशाए रुबानी में शिरकत हमें कैसे करनी चाहिए? हमें संजीदा और दुरुस्त सोच और दुरुस्त रवैये के साथ करनी चाहिए। लूका की इंजील उसका 22वां बाब उसकी 19वीं-22वीं वर्ष में जब हम इन सारी चीजों को देखते हैं, और क्योंकि तस्वीर में फर्क हो जाएगा, वही रोटी है, वही खून है, वही शीरा है, लेकिन इसके पीने से अगर आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके एटीट्यूड, आपके रवैये में फर्क आता है, तो इसकी तस्वीर हमारी जिंदगी में फर्क हो जाएगी। और ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगर सोच अच्छी नहीं होगी, आपका रवैया दुरुस्त नहीं होगा, तो फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। बाइबल बयान करती है, जी पढ़िए इस रेफरेंस को। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी। मतलब वो ही रोटी है, वो ही प्याला है, जो रोटी तोड़ी जा रही है, जो प्याला दिया जा रहा है, लेकिन अगर इसको रिसीव करने के लिए सोच गलत है, तो हमारी जिंदगी प्रॉब्लम में आ सकती है। हालेलुया। और अशाए रुबानी में जो शिरकत है, खुद इख्तिसाबी के बाद करनी चाहिए, अपने आप को एग्जामिन करने के बाद करनी चाहिए, आजमाने के बाद करनी चाहिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले। हम अपने आप को आजमा ले, अपने आप को चेक करना पड़ेगा। अपने आप को खुद ही चेक कीजिए, अपने आप को खुद ही चेक करना पड़ेगा। किसी और के स्कैनर से, किसी और के चेक करने से आप छुप सकते हैं, आप भाग सकते हैं, लेकिन बाइबल बयान करती है आदमी अपने आप को आजमा ले, जांच ले, परख ले। अगर मैं आपको परखना शुरू करूं, तो मैं कोई कमियां, कोई कमजोरियां, आपकी जो अच्छी चीजें हैं, मैं हमेशा आपको वो बताता रहूंगा। लेकिन जब आप अपने आप को खुद एग्जामिन करेंगे, तो यू नो कि आपका बिहेव कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है। इस चर्च हॉल के अंदर आपका एटीट्यूड इज लाइक, यू नो, कि आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा धर्मी बंदा कोई है ही नहीं है। आपका एटीट्यूड इस डोर के बाहर नजर आएगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका रवैया कैसा है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आदमी क्या करे, अपने आप को
आजमा ले, चेक कर ले, अपना मुआयना कर ले। अपने खुद का जायजा खुद ही करना है कि मैं किस तरह रहता हूं, किस तरह खाता हूं, किस तरह पीता हूं, मेरी नीयत क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे इरादे क्या है, मैं कहां तक लोगों के साथ सिंसियर हूं, मैं कहां तक लोगों के साथ चलता हूं, मैं कहां आके चीजों को बंद कर देता हूं और उन सारी चीजों से भाग जाता हूं। सो अशायर रुबानी लेने से पहले अपने आप को परखें, क्योंकि चाल चलन की वजह से अशायर रुबानी की तस्वीर बदल जाती है। किसकी वजह से बदलती है जी? चाल चलन की वजह से। इसमें तस्वीर है लेकिन वो बदल जाती है। हमारी नीयत, हमारी सोच, हमारे इरादे, हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके, हमारे चाल चलन की वजह से इसकी तस्वीर बदलती है। तो इसलिए हर बंदे को खुद परखना है अपने आप को कि वो किस स्टेज पे खड़ा है। हालेलुया। फसा में सिर्फ वो बनी इसराइली शरीक होते थे जो पाक हालत में होते थे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि फसा के अंदर वो ही इसराइली शरीक होते थे जो पाक हालत में होते थे। अपने आप को खुद इंसान को अपना पता होता है कि मैं पाक हालत में हूं या नहीं हूं। हालेलुया। पाक हालत का मतलब हरगिज ये नहीं कि जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इंसानी जिंदगी में जब वो वक्त गुजार रहा होता है तो सारी चीजों को वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। मैं पाक हालत की बना पे सारी चीजों को बोल, खास तौर पर खवातीन तो ये मत समझें कि आप खुदावंद के खून और बदन से दूर रहेंगे। एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर आके आपको यीशु के खून और उसके बदन से दूर नहीं रहना है। खवातीन जानती हैं सारी चीजें। हालेलुया। आपका जो नेचुरल प्रोसेस है अगर वो है तो यीशु के खून और बदन से आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी नापाकी और आपकी नाराजगी जो है वो आपके चाल चलन के साथ आती है। हालेलुया। जिसका चाल चलन गंदा है, जिसकी सोच नापाक है, जिसके इरादे दुरुस्त नहीं, वो अशायर रुबानी में शिरकत ना करे। बाइबल बयान करती है कि आदमी अपने आप को आजमा ले, चाहे वो औरत है या मर्द, अपने आप को पहले परखो। यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब आखिरी फसा खा रहे थे तो उस वक्त उससे कहा, उसने क्या कहा उनसे कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। आखिरी फसा की बात कर रहा हूं। टेबल पे बैठे हुए शागिर्द मौजूद हैं, यीशु मसीह सामने बैठे हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम में से एक मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। हर कोई अपने आप को क्या कर रहा है उस वक्त? परख रहा है, चेक कर रहा है कि क्या मैं हूं, कि क्या मैं हूं। हर कोई अपने आप से सवाल कर रहा है कि क्या मैं हूं। हर कोई कह रहा है क्या मैं तो नहीं हूं। लेकिन देखें कि कैसी अच्छी बात है कि उन्होंने एक शानदार अमल किया उस जगह पे, क्योंकि कोई भी अपने आप को परख नहीं सका कि वो कैसा है। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे डॉक्टर से पूछ लिया, यीशु क्या तू ही बता दे क्या मैं हूं। कैसी बात है कि पूछ किससे रहे हैं? पूछ किससे रहे हैं? जीसस से रहे हैं कि जो कह रहा है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें भी अपने गुनाहों को, अपनी चीजों को, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने आप को परखने के लिए यीशु के सामने रखना है। हालेलुया। शागिर्दों ने रखा, उन्होंने पूछा कि क्या यीशु मैं हूं? अपने आप को टेस्ट कीजिए यीशु के सामने रख के। बोले यीशु मैं खुद तो नहीं अपने आप को परख सकता, लेकिन तू परख मुझे पाक कर। मेरी सोच को, मेरे इरादों को, मेरे मंसूबों को, मेरी सारी चीजों को तू पाक करने वाला बाप है। तू पाक कर। हालेलुया। आज जब परखने की बात होती है, ज़बूर 139 उसकी फर्स्ट वर्स के अंदर लिखा है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। आगे जब हम थर्ड वर्स में जाते हैं तो लिखा है कि तू मेरी ख्वाब गाह की भी छानबीन करता है। तू मुझे परख और मुझे जांच, देख के मुझ में कोई बदी तो नहीं।
अपनी नजर में हम बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं हम अपनी नजर में, अपनी नजर में हम बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल रास्तबाज हैं, अपनी नजर में हम बहुत खूबसूरत भी हैं। हमसे ज्यादा कोई दुनिया में हैंडसम या ब्यूटीफुल है ही नहीं, ये हमारी अपनी नजर है। हालेलुया। हम जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं है। क्यों फ्रोबल जी, साढ़े जो कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन खुदा के कलाम की रोशनी में और खुदा की निगाह में हमारी क्या हैसियत है वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने आप को परखें और जांचें कि खुदावंद मैं ठीक हूं कि नहीं। खुदावंद से सवाल कीजिए, उससे पूछिए कि खुदावंद मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, मेरा चाल चलन ऐसा है कि मेरे अंदर तेरे खून और तेरे बदन की तस्वीर जो है वो बरकत वाली हो। ऐसा ना हो कि मैं किसी बड़ी सोच, इरादे या गलत रवैये के साथ इसमें शामिल हो जाऊं और सजा का हकदार हो जाऊं। सो ये परखना, ये इख्तिसाब करना, ये जांचना और आजमाना अपने आप को बहुत जरूरी है। हालेलुया। अशायर रुबानी हमारी चाल चलन की दुरुस्तगी में भी हमारी मदद करती है। देख लीजिए कैसा पॉइंट है। अगर आपका चाल चलन गलत है, चीजें खराब हैं, तो अशायर रुबानी आपकी मदद करती है कि आप उन सारी चीजों से बाहर आ जाएं। अशायर रुबानी हमारे चाल चलन की दुरुस्तगी का वसीला भी बनती है। जब इसे लेना है तो पहले अपने आप को परखें, अपना इख्तिसाब करें, अपने आप को अपनी जांच करें सबसे पहले। हालेलुया। तो ये एक मौका, तो फिर ये एक मौका बन जाता है हमारे दुरुस्त होने के लिए। हालेलुया। दुरुस्त हो जाएं इससे पहले कि खुदावंद आपके पास आ जाए। ये बड़ी डीप बात मैं कर रहा हूं। दुरुस्त हो जाएं इससे पहले कि खुदावंद आपके पास आ जाए। हालेलुया। और कहे कि तूने सारी जिंदगी गुनाह ही किया, तूने सारी जिंदगी बुरे काम ही किए, तेरा निकम्मा चाल चलन रहा है सारी जिंदगी। अगर आपका मसीहा ऐसा खड़ा हो कि आपको कमेंट करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अशायर रुबानी आपकी मदद करती है आपकी दुरुस्तगी करने में भी। आज आपके पास वक्त है, टुडे इज द राइट टाइम, कि अगर आप किसी चीज से दूर होना चाह रहे हैं, किसी चीज को छोड़ना चाह रहे हैं और वो चीज आपसे छूटने ही रही, तो टुडे इज द राइट टाइम कि आप अपनी जगह पे बैठिए, उस चीज को उसी जगह पे छोड़ के खत्म कर दीजिए और कहिए कि खुदावंदा मैं इसको इधर ही खत्म करता हूं, क्योंकि इसके बाद मैं उठ के तेरे लहू को और तेरे बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करने वाला हूं और उसकी तस्वीर मेरी जिंदगी में बरकत वाली हो, मेरा चाल चलन बदल जाए, मेरी चीजें बदल जाए, ये आप कहने वाले हो जाएंगे। लेकिन इसको रिसीव करना बड़ी हिम्मत के साथ। हालेलुया। कहिए कि खुदावंदा मैं तेरी मेज के पास जाना चाहता हूं, चाहती हूं, मेरे जो भी इरादे, जो भी मंसूबे अगर तुझे पसंद नहीं है तो मैं उनको इधर ही छोड़ती हूं, इधर ही खत्म करती हूं। आज से मैं अपनी जिंदगी को दुरुस्त करती हूं और चीजों को रिसीव करती हूं और मुझे पता है तेरे लहू से मेरी जिंदगी साफ हो जाएगी। हालेलुया। अशायर रुबानी की बाबत हमारा रवैया जो है ये मसीह के जैसा होना चाहिए। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? और कलामे खुदा के मुताबिक होना चाहिए। मसीह जैसा तो होना चाहिए लेकिन कलामे खुदा के मुताबिक होना चाहिए। यूहन्ना 13:1-38 पूरा बाब आप पढ़ लीजिए इसको घर जाके, क्योंकि ये ही दुरुस्त रवैया है। अशायर रुबानी की इबादत जो है, इसे क्या समझना है वो कलाम हमें सिखाता है। हालेलुया। इसमें कैसे शामिल होना है यीशु मसीह से सीखिए। हाँ जी, साथ है। इसमें शामिल कैसे होना है वो कौन हमें सिखाता है? खुदा का कलाम। और इसे लेना कैसे है वो कौन सिखाता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के जैसा हमारा रवैया होना चाहिए। हालेलुया। खुदा के कलाम ने हमें वो रवैया बताया है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल और बेहतरीन नमूना है। हालेलुया। कि हमारे रवैये कैसे होनी चाहिए,
हमारी सोचें कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए। अशाय रुबानी को लेकर जैसी सोच, जैसा रवैया, जैसा अमल, जैसा तौर तरीका आपकी जिंदगी में है, आप उस चीज को चेक कीजिए कि हमारा तौर तरीका क्या है। क्या हमारा तौर तरीका अकॉर्डिंग टू कलाम है? या यीशु मसीह से जब हम सारी चीजों को सीखते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा शानदार मौका है कि हम मसीह से और उसके कलाम में से सीख लें। हालेलुया। कि हमारा रवैया अशाय रुबानी के बारे में कैसा होना चाहिए, हम इसे कैसे समझें और हम कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं और कैसे हम इसकी तस्वीर से बरकत पा सकते हैं और ये हमारी जिंदगी में बरकत वाली कैसे बन सकती है। अशाय रुबानी हमारा चाल चलन मसीह के जैसा बनाने में भी मदद करती है हमारी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा चाल चलन मसीह जैसा बने तो आप आइए, पुरानी जिंदगी को खत्म कीजिए, अशाय रुबानी को रिसीव कीजिए और अपनी सोच, अपने इरादे, अपने नजरिए को स्पिरिचुअली लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम इसमें शामिल होते हैं तो ये किसका खाना है? किसका खाना है? ये किसकी ज़ियाफत है? ये किसका खून और बदन है? यीशु मसीह का। और उसके हुक्म के मुताबिक हम इसमें शामिल हो रहे हैं, उसके हुक्म के मुताबिक इसमें शामिल हो रहे हैं ना। हालेलुया। कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हम लोग, बल्कि उसके हुक्म के मुताबिक। उसने कहा मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो, तो फिर वैसे ही हमें इसमें शामिल होना है जैसे वो पसंद करता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि जैसा उसका अपना चाल चलन है, जैसा उसका अपना रवैया है, जैसा उसका अपना एटीट्यूड है। यीशु ने एक तमसील भी बताई है उसके लिए। आपको पता है कि एक शख्स ने ज़ियाफत की थी, एक शख्स ने ज़ियाफत की, जिनको बुलाया था वो तो आए नहीं। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा जाओ गलियों के मोड़ों पे, कूचों पे जितने लोग खड़े हैं उनको लेके आ जाओ, ताकि वो इस ज़ियाफत में शरीक हो। लेकिन ज़ियाफत में शरीक होने से पहले उसने एक शर्त भी रख दी। उसने कहा जिसका ड्रेस, जिसकी प्रेपरेशन, जिसकी तैयारी, जिसका सूट बूट इस ज़ियाफत के मुताबिक नहीं है, उसको अंदर नहीं आने देना। ये ही खुदा का कलाम हमें सिखाता है। अगर हमारी तैयारी इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम ज़ियाफत से बाहर ही रहेंगे। हालेलुया। कि हमें अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं तैयार होना, बल्कि हमें उस दावत के मुतालिक, उस दावत के मुताबिक, उस इनविटेशन के मुताबिक जो बाइबल देती है उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। और ये एक मौका बन जाता है अच्छे कपड़े पहनने का भी। हालेलुया। ये एक मौका बन जाता है स्पिरिचुअली, जिस्मानी तौर पे, इंटरनल, आउटर, हर चीज को फिट करने। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि अशाय रुबानी हमारी मदद करती है सारी चीजों को करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि हम वैसे ही हो जाएं जैसा वो है। हालेलुया। जैसा वो है हम वैसे ही हो जाएं, ताकि उसकी मेज हमें कबूल करे, उसकी मेज में हमारी कबूलियत हो जाए। इसको आप लाइट ना लें इस सारी चीजों को। हालेलुया। हम मसीह के जैसे बन जाएं। ये खाना, ये अशाय रुबानी हमारी मदद करती है कि हम उस जैसे बन जाएं, हमारा रवैया उस जैसा हो जाए, हमारा चाल चलन उस जैसा हो जाए। हालेलुया। अशाय रुबानी में, हालेलुया, साथ रहिएगा, ये पॉइंट बड़ा मजे का है। लोग जो आज नहीं आए ना, ये उनके लिए ये पॉइंट। अब समझिए कि आप बहुत बरकत वाले लोग हैं जो इस जगह पे आ रहे हैं। आमीन। अशाय रुबानी में शिरकत की हमारे अंदर शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। हालेलुया। कई लोगों का दिल नहीं करता, कई साल, कई महीने वो अशाय रुबानी में शरीक नहीं हुए होते, वो शामिल ही नहीं होते। वो कहते हैं जी ऐसे ही शामिल होकर हमने गुनाहगार हो जाना, बेहतर है हम ठीक ही रहें, बेहतर है हम ऐसे ही रहें। लेकिन मेरे अजीजों, एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो बीमार हो वो दवाई ये सोच के ना खाए कि ये मुझे साइड इफेक्ट करेगी, तो वो कभी भी जिंदगी में सही नहीं हो पाएगा।
हालेलुया। वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, वो कभी भी मेडिसिन खा के मेडिसिन लेगा नहीं तो ठीक नहीं हो सकता है। ये चीज ज़हन में रखिए, ये पाकीज़गी पाने का एक जरिया है। हालेलुया। ये उसके करीब जाने का एक जरिया है। ये वसीला बन जाती है, आप और यीशु एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। एक वसीला है, मसीह से बरकत पाने का, उसकी कुव्वत और मसा पाने का शायर बानी एक तस्वीर है। हालेलुया। हमारे अंदर उसमें शामिल होने की शदीद आरज़ू होनी चाहिए। किसमें शामिल होने की शदीद आरज़ू होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए हमारे अंदर, एक डीप डिजायर होनी चाहिए कि मैंने खुदा की मेज में शरीक होना चाहती हूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये आपकी और मेरी बात नहीं है, लोगों को अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ आज तक। मसीह की आरज़ू थी। हालेलुया। शदीद ख्वाहिश, शदीद आरज़ू, कि मेरी आरज़ू थी कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ एक वक्त का खाना खा लूं। तो हमारी ख्वाहिश देखें, हमारी सोच देखें कि हमने बड़ा लाइट लिया हुआ है। दुआ करेंगे यीशु जैसा चाल चलन आ जाए, यीशु जैसी चीजें आ जाए, तो बादशाहों का बादशाह है। एक्ट क्या है, रवैया क्या है, एटीट्यूड क्या है, चाल चलन क्या है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होनी चाहिए इस मेज में शामिल होने के लिए। हालेलुया। मसीह की आरज़ू थी कि मैं दुख उठाने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। ये मसीह की ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ बैठ के इस फसा को सेलिब्रेट करें। हालेलुया। हमारे अंदर भी मसीह के जैसी ख्वाहिश होनी चाहिए मेरे अजीजों। भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, ड्यूटियां छोड़ छोड़ के, नुकसान कर कर के बोलिए मेरे मसीह की आरज़ू थी, मेरी भी आरज़ू है कि मैंने मेज में जाना है। आज 500 दिरहम भी कटता है तो कटे, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मेज पे जाऊंगी। भाग भाग के, दौड़ दौड़ के, कोई बात नहीं, जिंदगी भर कमाना है, ये मेज में शामिल होने का मौका बार बार नहीं आएगा। ये चीज ज़हन में रख लीजिए। नुकसान उठा के, मुसीबत बर्दाश्त करके उसके टेबल के पास आने की डिजायर रखी। हालेलुया। शदीद ख्वाहिश में आ जाओ। यीशु की शदीद ख्वाहिश थी, और हम ख्वाहिश ही नहीं करते, हम आरज़ू ही नहीं करते, हमारे दिल सख्त हो चुके हुए हैं। हालेलुया। मसीह की मेज पे आना, उसके खाने में शामिल होना, ये बरकत का वसीला है मेरे अजीजों, और ये मसीह की तस्वीर से भर जाने का जरिया है कि आपके अंदर यीशु मसीह की सारी चीजें आ जाती हैं। आरज़ू रखो, ख्वाहिश रखो कि मुझे इस मेज में शामिल होना ही होना है। फसा के लिए हुक्म था कि अगर किसी जायज वजह से, यानी आपके घर में कोई मैयत हो गई है, या आपके घर में कोई मुर्दा है, आपने उसको नहला दिया है या छू लिया है, तो आप फसा में, आप नापाक हो गए और आप फसा में शामिल नहीं हो पाए, तो आप, या आप सफर में हैं, दूर हैं, तो आप अपने घर से दूर हैं, लोगों के बीच में नहीं है, आप 10 लोगों से दूर हैं, अपनी फैमिली में नहीं है, अपने खानदान में नहीं है, तो उसके लिए हुक्म क्या था कि मिलकर खानी है। हुक्म क्या है कि मिलकर खानी है, आपने अकेले 2 लोगों में इसे नहीं खाना है। मतलब कि मिस करने की ऑप्शन ही नहीं है, और अगर मिस हो भी गई है किसी तरीके से, तो फिर होता क्या था कि उसको बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगले महीने की 14वीं तारीख को तुमने करना ही करना है अपने खानदान के साथ। ऐसा नहीं है कि साल में एक दफा फसा है, फसा सेलिब्रेट नहीं हुई तो देन वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। नो, खुदा का कलाम कहता है कि अगले ही महीने में तुझे, अगली ही महीने की 14वीं तारीख को तुझे फसा तैयार करनी है। तुझे मिस हुई है, तुम्हें छोड़नी नहीं है, तुम्हें सेलिब्रेट करनी है। ये उसका हुक्म है। आज मसीही क्यों खुदा की मेज से दूर हैं? ये तो ऐसा सख्त हुक्म है, लेकिन हम मसीही इस चीज को लाइट लेके बैठे हुए हैं। ये बड़ी शानदार दावत है, ये बड़ी इज्जत वाली दावत है। इसमें शामिल होना, इसकी तैयारी करना, तैयारी के लिए उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए फसा तैयार करो। हालेलुया। हर किसी को ये इज्जत नहीं मिलती है, ये चीजें इनमें रखिए। उसकी चीज तैयार करना खुदा की नुमाइंदगी करता है। हालेलुया। खुदावंद को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो इन सारी चीजों को तैयार कर रहा होता है। कितनी इज्जत की बात है ये, कितनी बरकत की बात है, और ये खिदमत भी है जिसका खुदा ने वादा किया है, हुक्म दिया है।
खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात उसने फसा खाई, उसने क्या किया? फसा खाने के बाद हादम की सूरत इख्तियार कर ली। हालेलुया, हादम की सूरत इख्तियार कर ली। अपने कुर्ते को उतारा, अपने रुमाल को, अपने चोगे को अपनी कमर के साथ बांधा और सबके पांव धोए। और तौलिए से, थोड़ा उन बच्चों को कंट्रोल कीजिए जरा, वॉइस जो है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने आप को हादम के तौर पे पेश कर दिया। हालेलुया, उसने अपने आप को क्या पेश किया? हादम के तौर पे। उसने लोगों के पांव धोए, तौलिया लिया, तौलिए से पांव साफ किए, वो हादम बन गया। और मेरे अजीजों, जो इस चीज की सारी तैयारी कर रहा होता है, वो उस लम्हे एक बड़ी इज्जत वाला रुतबा पा चुका होता है। हालेलुया। और उसने कहा, ये अशाइया, ये खाना तुम्हें याद दिलाएगा। और जिस वक्त, सुनिए ये आपके लिए है, जिस वक्त आप इस मेज में शामिल हो रहे होते हैं, आप इस खून को ले रहे होते हैं, आप इस बदन को ले रहे होते हैं, आप दुनिया के सबसे बड़े इज्जतदार लोग बन जाते हैं उस वक्त। हालेलुया। इसमें शरीक होना या इसकी शिरकत में खिदमत करना या इसमें सर्व करना सब इज्जत की बात समझी जाती है। हालेलुया। कभी आपने माँ को या बाप को या किसी बहन भाई को ऐसे देखा हो कि वो किसी के सामने हाथ पे हाथ रख के सामने आया हो? दिस इज द एक्ट कि जब भाई सामने है, माँ सामने है, बेटा सामने है, अगर बेटा अशायरबानी दे रहा है तो माँ हाथ पे हाथ रख के सामने खड़ी होती है कि मुझे इस यीशु के लहू को, इसके बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है। और ये बड़ी इज्जत की बात समझी जाती है कि अगर भाई है, बहन है, बेटा है, तो लोग सामने खड़े होकर आपको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और यीशु जैसा एक्ट हो रहा होता है आपकी लाइफ में। चर्च के अंदर जहां पे घुटनों के बल ली जाती है, लोग, माएं, बेटियां, बच्चे अपने हस्बैंड के सामने, अपने भाई के सामने वो घुटनों के बल चले जाते हैं। किसकी वजह से? अशायरबानी की वजह से। अशायरबानी आपके रवैये को बदल देती है। हालेलुया। और जो तैयारी करते हैं, जो बांटते हैं, जो इसकी खिदमत करते हैं, खुदा ने उनके लिए बड़ा वादा रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ियाफत में तैयारी के लिए सारी चीजों को तैयार करते हैं। और जो इसमें मजे की बात है कि जो इसमें शरीक होते हैं वो मेहमान होते हैं। और पता किसके मेहमान होते हैं? यीशु के, खुदावंद के मेहमान। जो आज नहीं ना आए, मतलब ये यीशु के मेहमान है ही नहीं है। हमें यीशु के मेहमान बनने की कोशिश करनी है। हालेलुया। और जो इस समय में इन सारी चीजों को तैयार कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, वो एक बड़ी इज्जत को एंजॉय कर रहे होते हैं उस वक्त। हालेलुया। और इसमें शामिल होने वाले जो मसीह के मेहमान हैं, वो भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ शामिल होते हैं। हालेलुया। अगर आप जिम्मेदारी समझ के इसमें शामिल होगे ना, तो मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है कि ये यीशु मसीह की डिजायर थी, यीशु की डिजायर थी। उसने कहा तुम जाओ और इसकी जाके क्या करो? तैयारी करो। एक आदमी मिलेगा, तुम उसको ले लेना, उसके घर में जाना, चीजों को तैयार करना। मतलब यीशु चाहता है सारी चीजें करना, और हम इंसान होते हुए कर में आए हुए हैं। नहीं जी, मैं नहीं लूंगा जी। हम वैल्यू नहीं करते चीजों को। हम क्या नहीं करते? वैल्यू नहीं करते, जबकि हमें वैल्यू करना है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर उनका फसा मिस हो जाता था तो छोड़ने का हुक्म है ही नहीं था। हालेलुया। कि चलो छोड़ दिया, आज नहीं तो अगले साल सही। नो, हुक्म है ही नहीं है छोड़ने का। अगले महीने की 14वीं को करना है भाई। हालेलुया। ये हुक्म था उनको कि करना ही करना है, जैसे करके भी छोड़ना नहीं है। अगर मिस हो गया तो करना है, छोड़नी नहीं है, वरना सजा के हकदार हो जाओगे। और शदीद आरजू रखनी है इसमें शामिल होने के लिए। अशायरबानी की तैयारी, इसमें शिरकत एक आला एजाज, हिदमत और जिम्मेदारी समझ के करनी चाहिए। हालेलुया। साथ है?
अशाए रुबानी की तैयारी, इसमें शिरकत एक आला एजाज, खिदमत और जिम्मेदारी समझ के करनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। समझाता हूं आसानी से। अभी आप इस जगह पे बैठे हैं और आपको, चले एक दिन पहले लगाते हैं, आपकी बात आज की बात नहीं करते हैं, आप चर्च आना ही छोड़ेंगे सबसे पहले जब ये चीज आपके अंदर आएगी। होता क्या है, आप बैठे हुए हैं, आपको कॉल आ गई है किसी की कि आज जो कंट्री का बादशाह है ना, जो कंट्री किंग है, जो मुल्क का प्रेसिडेंट है, आपको बुलाया गया है कि आपने उसके साथ कॉफी पीनी है। होगा क्या, व्हाट्सएप खेलना शुरू हो जाएंगे, लोगों को कॉल्स करना शुरू कर देंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना शुरू कर देंगे, स्टोरियां लगना शुरू हो जाएंगी कि जी लो जी देखो जी, मुझे इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने बुलाया है, कॉफी में बुलाया है, दावत दी है जी, तूने मेरे साथ चाय पीनी है, कावा पीना है, कॉफी पीनी है जी, मुझे बुला लिया गया है। और ये देखे जी मेरे लिए कितने बड़े एजाज की बात है कि मुझको इनविटेशन आया है। हालेलुया। हर बंदे को आप बताते फिरेंगे अपनी लाइफ में, ये देखे जी मेरे पास इनविटेशन आ गया है कि जी मुझे किंग ने बुलाया, मुझे बादशाह ने, मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया कि जी तूने मेरे साथ कॉफी पीनी है। गेटिंग रेडी, आप स्टेटस डालेंगे, गेटिंग रेडी टू मीट द प्रेसिडेंट एट कॉफी, स्टेटस चलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मैं जा रहा हूं प्रेसिडेंट को मिलने, मैं जा रहा हूं कॉफी पीने के लिए, ये स्टेटस चालू हो जाएंगे हमारी लाइफ में। अरे बादशाहों के बादशाह की, शहनशाहों के शहनशाह की, राजाओं के राजा की, आपके निजात दहिंदा की मेज तैयार है और वो आपको बुला रहा है कि मेरे बदन और खून में आ जाओ शरीक होने के लिए। वो आपकी राह देख रहा है और उसने हुक्म दिया है कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं तुमने ऐसे ही करते रहना। हालेलुया। बादशाहों का बादशाह आपको दावत दे रहा है, मुल्क का प्रेसिडेंट आपको दावत दे रहा है, तो आप उसको बड़ी इज्जत की बात समझ रहे हैं, आप बड़े रिस्पेक्टफुल बने हुए हैं कि जी मुझे प्रेसिडेंट की कॉल आई हुई है, आप ऑनर फील कर रहे हैं जी, मुझे प्रेसिडेंट की कॉल आई है जी, सिर्फ एक कॉफी पीनी है जी मैंने। आप बादशाह के साथ बैठे, बात सुनिएगा ध्यान से, आप बादशाह के साथ बैठे, आपने कॉफी पी, सुनिए, आपने कॉफी पी ली, बादशाह उठ के चला गया, आपको उठा के डोर के बाहर फेंक दिया, आप फिर आम इंसान, वो बादशाह का बादशाह। आप इसकी मेज पे आ जाएं, आप शाही कायनों का फिरका बन जाएंगे, आप तख्तों पे बैठ के दुनिया का इंसाफ करेंगे और वो आपको बादशाह, ये बादशाह आपको वैसे नहीं छोड़ देगा। वो बादशाह ने छोड़ा, आप फिर नॉर्मल है, आप फिर वो ही हैं और आपकी जिंदगी में याद ही है कि जी मैं एक दफा गया था, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है, यीशु ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हालेलुया। दुनिया का बादशाह आपको बुलाएगा तो आप भाग के जाएंगे, लेकिन यीशु बादशाह बुलाता है तो उसके लिए हम थोड़े ढीले पड़े होंगे। और वो ऐसा बादशाह है कि जब वो बुलाता है वो आपको अपने साथ तख्त पे बैठाएगा, वो आपको डोर ओपन करके बाहर फेंक के फिर आम आदमी नहीं कर देगा, बल्कि आप तख्त पे बैठेंगे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा जैसा मैं हूं वैसे तुम भी हो, जैसे मैं बाप कहता हूं वैसे तुम भी बाप कहोगे। हालेलुया। साथ रहिएगा, जो फरिश्ते मेरी मदद करते हैं, जो फरिश्ते मेरी हेल्प करते हैं, वही फरिश्ते तुम्हारे साथ होंगे। ये है बादशाहों के बादशाह का काम भाई। जैसे मैं तख्त पर बैठूंगा वैसे ही तुम मेरे साथ तख्त पे बैठोगे, जैसे मैं अदालत लगाऊंगा, अदालत करूंगा, तुम भी मेरे साथ बैठ के अदालत करोगे। ये उसका हुक्म है, ये उसने करके देना है आपको और तुम इंसाफ करोगे। हालेलुया। अगर आप इंसाफ करना चाहते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमें अपनी लाइफ में सारी चीजों को क्या है, बड़ी ईमानदारी के साथ लेना होगा। और अगर हम चीजों को अपनी लाइफ में नहीं लेते तो मतलब कि हम किस में आ जाते हैं, हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने प्रॉब्लम में नहीं आना, मैंने प्रॉब्लम से बाहर रहना है। सारे चाहते हैं कि हम प्रॉब्लम में ना आए। हमें अशाए रुबानी में शामिल हो के हमारी पकीजगी और ईमान में पुख्तगी आ जाएगी जब हम अशाए रुबानी में शामिल होंगे। हालेलुया। और ये हमारे पास एक अच्छा सोर्स है,
کہ ہم ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے, ایمان کی پختگی آ جائے گی. ایک حوالہ میں پڑھانے لگوں, ذرا ساتھ رہیے گا. پہلا کرنتھیوں 10 باب اس کی 21ویں اور 22ویں, تھوڑا ایسی تیز کر دو. تھینک یو لارڈ. پہلا کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت. میں نے بولا ہے ایمان میں پاکیزگی اور پختگی آ جائے گی جب ہم عشائر بانی کو اپنی زندگی میں لیں گے. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. آمین. تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. شیطان کے پیالے میں سے پیو گے تو یہ خداوند کو قبول ہی نہیں ہے. پتہ ہے اس کے لیے ہوتا کیا ہے؟ جی آگے بڑھیے بھائی تھوڑا سا. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. سنیے میں صرف 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, ہم بالکل لاسٹ پہ ہیں. تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے. جی کیا ہم خداوند کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ یہ ہے وہ غیرت جو خدا کو ہے کہ جب ہم خدا کو چھوڑ کے شیطین کی طرف جاتے ہیں تو ہم خدا کی غیرت کو جوش دلا رہے ہوتے ہیں. اور خدا ہمارا غیرت مند خدا ہے, ذہن میں رکھیے گا. وہ اس بائبل مقدس بیان کرتے ہیں اس کو اپنے گھر کی غیرت کھا گئی. وہ غیرت والا خدا ہے. ہاللیلویا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے, ساتھ رہیے گا ذرا, اب میں آپ کو پڑھاتا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی وائف ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور مرد کے ساتھ آپ کے سامنے گھومتی پھرے. میں نے بڑی بریک بات کی ہے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجیے. جیسے آپ کی وائف آپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ گھومتی پھرے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے, خدا کہتا ہے کہ تم خدا کے پیالے اور شیطان کے پیالے سے نہیں پی سکتے, شریک ہی نہیں ہو سکتے, دوہری چیزیں آپ کھا نہیں سکتے. کیوں کہ کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کی دلہن ہے. وہ دلہا ہے اور دلہا نہیں چاہتا کہ اس کی دلہن کسی اور ٹیبل پہ جائے, کسی اور میز میں جائے. وہ غیرت رکھتا ہے جیسے ہم اپنی بیوی کی غیرت رکھتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ چلے, میرا ہسبینڈ صرف میرے ساتھ چلے, کسی اور کا نہیں. خدا بھی غیرت رکھنے والا خدا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے میز سے بھی کھائیں اور ادھر سے نکل کے کسی لنگر میں, کسی بھنڈارے میں, کسی ختم کی روٹی میں, کسی دوسری چیز میں آپ جا کے پھنس جائیں, بیٹھ جائیں اور ایک فوڈ کھا کے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب شیطان اور خدا کے پیالے دونوں کو ایک جگہ پہ نہیں رکھ سکتے. اور وہ غیرت رکھتے ہیں اس چیز کی. وہ غیور خدا ہے. ہمیں اس ساری چیزوں کو سمجھنا ہے. ہاللیلویا. اور شوہر کو تب غیرت آتی ہے جب اس کی وائف کسی دوسرے کے ساتھ وہ اپنی وائف کو دیکھتا ہے. اس کے اندر غیرت جاگ جاتی ہے کہ یہ میری بیوی, اس کے لیے سارا کچھ کیوں کر رہی ہے, یہ ہے تو میری. اور اسی طرح خدا بھی غیرت رکھتا ہے کہ یہ میری کلیسیا ہے, میری دلہن ہے, میں اس کا دولہا ہوں, اور میری دلہن کسی اور کے ٹیبل پہ جا کے اس کو سرو کیسے کر سکتی ہے. ہاللیلویا. یہی وجہ ہے کہ وہ جائز اور ناجائز چیزوں کو دیکھتا ہے. پھر ہاللیلویا. ہم ایمان کی پختگی اور پاکیزگی کے ساتھ اس میں شامل ہوں. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ پربھو تیری میز سے ہٹ کے مجھے کسی جگہ سے برکتیں مل ہی نہیں سکیں گی. ہاللیلویا. پاکیزگی کا مطلب ہے اپنے آپ کو صاف کرو, اپنے آپ کو پاک کرو, سارے عقیدے اور ایمان ختم کر کے, سارے عقیدے اور ایمان ختم کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر دیں. بھلا میں نے کیوں سارے عقیدے اور ایمان کہا؟ کیوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم بڑی چیزوں میں بٹے ہوئے. اور پاسٹر جی کوئی بات نہیں, میں تھوڑا سا ادھر کو بھی موو کر لیتا ہوں. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ راست باز بن جا, اپنے اندر سے ناپاکی کو دور کر, پاکیزگی کو جگہ دے. تم شیطان اور خدا کے پیالے دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے نہیں تول سکتے, تم تلنا نہیں تول سکتے. بائبل مقدس کہتی ہے انسان اپنے آپ کو آزما لے, ایگزامن کرو اپنا, آزماؤ اپنے آپ کو کہ کس سچویشن پہ بیٹھے ہوئے. ہاللیلویا. آپ ایک خوراک کو اپنی زندگی میں لے تو لیں گے, لیکن وہ خوراک آپ کو خدا کے میز سے دور کر دے گی. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ہاللیلویا. ایمان میں پاکیزہ بن جائیے. پیورٹی ان فیتھ, میچور ان فیتھ.
अपने आप को मैच्योर करिए, बच्चे ना बन जाइए, आंखें ना मीटिए। कल परसों मैं एक चीज इसको शेयर कर रहा था, मैं बोल रहा था कि लोगों ने अभी ना बड़े बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो अपने जो मसीही बहन भाई है ना, वो इंग्लिश नाम एक बड़ा, पास्टर जी मैं पोर्क भी खा लेती, मैं खाई है पंजाबी जी दिन सूर आंदे नहीं, बाइबल में लिखा है। फिर बड़ी आराम से बोलते बाइबल में लिखा है। मैं कहा बाइबल में बड़ी कुछ लिखी है ये चीजें, वो क्यों नहीं करते? सूर नापाक है, तुम लोगों को देख के चीजें रिसीव करते हो, करो, लेकिन खुदा के मेज से दूर रहो। चीजें करो लेकिन खुदा के मेज से दूर रहो, फिर इसकी तस्वीर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। काम गलत है, सोच गलत है, इरादा गलत है, चीजें गलत अंदर ऐड हुई है, और बाद में शायरबानी और रोटी और खून और बदन ले रहे और कहते असर नहीं कर रही, नहीं करेगी। खुदा पाक है, वो पाक जगहों पे आके काम करना जानता है। हालेलुया। हमें अपने ईमान को पुख्ता रखना है, अपनी सोच को बदलना है। हालेलुया। हम खुदा के प्याले और शैतान के प्याले दोनों को एक जगह रख के नहीं खा पी सकते। हम खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान को एक जगह पे रख के नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप ईमान में पुख्ता होते हैं तो खुदा आपको कुव्वत देता है, खुदा आपको ताकत देता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम ईमान के साथ इस रोटी को अपनी जिंदगी में नसीब करते हैं, ईमान के साथ उसके बहाए गए खून को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, तो इसकी तस्वीर हमारी जिंदगियों में काम करती है। हालेलुया। और अगर आज आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो आपने कहना है कि खुदावंदा मेरा ईमान है। हमारा ईमान ही है ना कि उसका बदन क्या है हमारे लिए तोड़ा गया है, हमारा ईमान है ना इस चीज पे, और उसका खून हमारे वास्ते बहाया गया, ये हमारा ईमान है। और फिर हमें पाक और मजबूती के साथ इन सारी चीजों में शामिल होना है। अशायरबानी में शिरकत जो है ये उसकी मोहब्बत और यादगारी को जाहिर करती है। हालेलुया। इसलिए शिरकत नहीं करनी है शायरबानी में कि मेरा दोस्त सामने खड़ा है, मेरा भाई सामने खड़ा है, मेरा हस्बैंड सामने खड़ा है, मेरा रिश्तेदार सामने खड़ा है, वो दे रहा है और मैं जाके ले लूं, अगर बाद में वो मुझे पूछेगा कि मैं उस जगह पे था और मैंने तो तुमको देखा ही नहीं, ये गलत सोच है। हमें इसमें शामिल होना है मसीह की मोहब्बत को लेके। हालेलुया। हमें इसमें शामिल होना है उसकी यादगारी को मनाने के लिए। मसीह के अलावा किसी और की मोहब्बत हमारे दिल में होनी नहीं चाहिए। इसमें शामिल हम इसलिए हो रहे हैं कि ये यीशु मसीह का हुक्म है। किसका हुक्म है? ये मसीह का बदन है और ये मसीह का खून है। हमें जिससे मोहब्बत होगी हम उसके प्रोग्रामों में शामिल होंगे। ऐसी बात है, साथ रहिए जरा। हमें जिससे मोहब्बत होगी हम उसके प्रोग्रामों में शामिल होते हैं, सालगिरह में शामिल होते हैं, शादी की सालगिरह में शामिल होते हैं, हकीके जटोर जाने या कोई भी प्रोग्राम असि छड्डदे नहीं कि बंदा नाराज हो जाएगा मेरे तो। इंजी है ना रवो जरा, थोड़ा जिहा सुनना पेगा, अज जरा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पेगा कि अगर खुदा ने मेरे अंदर विजन दिता कि कलीसिया मैं शेयर करा तो उहदे पीछे कोई रीजन नहीं। हालेलुया। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसको वो नाराज ना हो जाए। हम लोगों की नाराजगियां तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो बंदा नहीं आया कि मेरे भरा का कलौता पुत्र सी जी, मैं उथे ना गई, उथे ना पहुंची, चर्च ते अगली बारी भी टुर जांगी, उथे ना पहुंची तो काम खराब हो जाए। जी मुझे वो सारी दुनिया से ऊपर है जी, वो मेरे लिए सारा कुछ भावे तुहानू कख ना समझ लियो। तुसी ਉਹ महफिलों ਲਈ ਉਹ ਦਾਵਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਵਕਤ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जब हम इसमें शामिल हो, हमारे इरादे अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे ख्यालात अच्छे होने चाहिए, और सबसे बढ़ के हमारे अंदर मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए।
किसी के डर से, किसी के वहम से कि ए मैनू की आखेगा, ओ मैनू की आखेगा, वो छोड़ दीजिए, बल्कि मसीह की मोहब्बत को कैरी करके टेबल के पास आइए। हालेलुया। और जब आपको पता है फिर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा आपको। आमीन। मोहब्बत का जवाब किससे मिलेगा? मोहब्बत से। ऐसा हो नहीं सकता कि आप आए मोहब्बत के साथ और वो आपसे मोहब्बत ना करें। ऐसा हो सकता है? अगर आप बड़ी चाहत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आप बड़ी चाहत और बड़ी मोहब्बत के साथ, एक बंदा है वो आपको कहता है जी आपने मेरे घर पे दावत पे आना है, और वो बड़ी चाहत और बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं, और आप आगे से क्या कहते हैं कि जी मेरे पास वक्त नहीं है, फिर अगला बंदा क्या कहेगा? या ऐसा होता है कि वो आपको टाइम दे देता है, आप एक वक्त के लिए प्रॉमिस कर भी देते हैं, और वक्त आता है कि आप वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते, कहते हैं जी वो मुझे टाइम नहीं मिला, तो उस बंदे को बड़ा बुरा लगेगा। उस बंदे को कि यार मैं इसकी फिक्र करता हूं, इसको मेरी फिक्र है नहीं है। इसी तरह यीशु रख के टेबल पे बैठा है कि मैं इनकी फिक्र करता हूं और इनको मेरी फिक्र नहीं है। हालेलुया। जब भी खुदा के घर खून और रोटी की बात हो तो भाग भाग के जाएं, दौड़ दौड़ के जाएं, कन्विक्शन रखें टेबल में शामिल होने की, अकीदा रखें कि नहीं ये संडे कोई दुनिया अगर गोल्ड का भी बंदा मेरे सामने आ जाए ना, मुझे कहे मैं तुझे इतना गोल्ड दे, तो बोले नहीं मैंने नहीं लेना, मैंने खुदा की मेज में शामिल होना चाहता। ईमान के साथ आइए। मसीह ने हुक्म दिया है कि मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही करो, छोड़ने का हुक्म है ही नहीं है। और उसने कहा कि जब तक मैं दोबारा ना आऊं तुमने ऐसे ही करना है। हालेलुया। क्योंकि अशायर रुबानी में शामिल होने के लिए हमारे अंदर मसीह जैसी मोहब्बत होनी चाहिए। उसने शायर के वक्त ये हुक्म दिया था कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी ना रवो। हुण तुहाडी गल आ गई। हाँ, काफी टाइम तुसां सुन रहे हो, तुहाडी गल आ गई विच। उसने क्या कहा? मैं तुमको एक नया हुक्म देता हूं कि जैसे मैंने ना रवो जरा, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। उससे सब जानेंगे कि तुम मेरे, हाँ जी, शगिर्दां वाला रवैया रखना है। किन्ने चाहते ने शगिर्दां वाला रवैया रखिए? मोहब्बत करनी पैनी जी, ये गल ज़हन च रखो एक दूसरे दे नाल। फरोबल तेरा हाथ थोड़ा थल्ले होवे, थोड़ा चुक तेरू बेगम हो लवे वे कि चुक साडे लो वे। हालेलुया। मोहब्बत सानू रखनी है अपने अंदर ताकि दुनिया जाने कि असीं किहदे शागिर्दां? यीशु दे शागिर्दां। अशायर रुबानी में शिरकत होना मसीह की मोहब्बत को जाहिर करता है। हालेलुया। और वो मोहब्बत अपने आप से नहीं होगी, ये चीज ज़हन में रखिएगा, बल्कि ईमानदारों की जुमात में शामिल होने से मोहब्बत आपकी जिंदगी में आएगी। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बने तो आपने फिर चर्च में आना है, चीजों को रिसीव करना है अपनी जिंदगी में शामिल होने के लिए, और उसकी मोहब्बत को एक दूसरे के साथ क्या करना है? बांटना है। अगर हम में उसकी मोहब्बत है और हम उसकी मोहब्बत को जगा नहीं ना रहे तो उसका भी फायदा नहीं है हमारी लाइफ में। हालेलुया। बड़ी हलीमी आजिज़ी के साथ हमें इस टेबल के पास आना है, हलीमी और आजिज़ी के साथ, फरोतनी के साथ, झुकाव के साथ। हालेलुया। अपने आप को खाली करके इस टेबल के पास आना है ईमान के साथ। खुदावंद को कहिए कि खुदावंद जो मेरे अंदर चीजें, एडिक्शन है, जो प्रॉब्लम्स है, जो कमी है, जो कमजोरियां हैं, जो चीजें मैं गलत करता हूं, आज मैं उनको इधर ही छोड़ता हूं, और जब मैं तेरे खून और बदन में शरीक हूं तो उसके बाद ये मैं इन चीजों को रिसीव नहीं करता। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि तुम पे फर्ज भी है कि एक दूसरे के पांव भी धोया करो। क्या है? एक दूसरे के धोने पैने ने। हाँ, खिदमत करनी पैनी। असी खादम रखे है प्रेस करान, खिदमत करन, पैर धोन, लोकां तक जाए, तरले ओ पावे भाई इत्थे दुआवां करनियां ने ते थानू अप्रूवल दिओ, तरले ओ पावे, सब कुछ ओ करे, खिदमत भी वही करे, हर एक चीज। लेकिन असी सिर्फ इन्ना जी शामिल हाँ, पास्टर जी कदम बढ़ाया, हम आपके साथ हैं। मसीह कहता है अगर आपके अंदर मेरी मोहब्बत है तो आरजू रख के, शदीद ख्वाहिश रख के इस टेबल के पास आ जाओ। हालेलुया।
और अशायरबानी जो है इसमें खिदमत करने वाला, खिदमत लेने वाला, सारे जो हैं वो बरकत के हकदार होते हैं। आप खुदा के यस्सु के मेहमान हैं आज आप, ये चीज ज़हन में रखिए। दुनियावी जगह पे लोग आपको बुलाते हैं तो आप खुश होके जाते हैं, लेकिन जब यस्सु बुलाता है तो फिर असी की कहने टाइम है नहीं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, घुमंडियां कोल ओ नहीं जानता ना झूठियां नाल। जो मैसेज मुझे कर देते ना, पास्टर जी मैं आज फलां जगह पे बिजी था ते रेहा घर सुता, कहंदा मैं झूठियां ना भी मैं यारी नहीं रखता। घमंडी सिर्फ कमांडे कि जी मेरी मर्जी, मेरा दिल करे तो मैं चर्च जाऊं या दिल करे तो ना जाऊं। ये तेरे दिल से चीजें नहीं चल रही है। दिल करे तो मैं शरीक हूं, दिल करे, तेरे दिल से चीजें नहीं चल रही। यस्सु ने कहा मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही कहो, ऐसा ही करो, मेरे खून और बदन में शरीक हो। यस्सु ने कहा तेरे अंदर घमंड है, तेरे अंदर आजिज़ी है नहीं, अगर तू ऐसी सोच रहा है। क्योंकि जिसकी मेज में, जिसकी हजूरी में, जिसकी मौजूदगी में तू आ रहा है, ये उसका बदन और उसका खून तू अपनी जिंदगी में ले रहा है। दुनियावी खाने तुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन जो खाना तुझे कुव्वत, ताकत और सारी चीजों से माला माल करेगा, वो तेरा दिल ही नहीं है कि उसकी तरफ तू राग़िब हो जाए। हालेलुया। हमें शायरबानी में शिरकत, कबूलियत और यगानगत के साथ करनी चाहिए कि खुदावंद मैं इसको बड़े ईमान के साथ अपनी जिंदगी में कबूल करती हूँ। हालेलुया। और जब हम इसको खाते और पीते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो हम में और हम उसमें बस जाते हैं। उसने कहा मैं तुम में और तुम मुझ में कायम हो। ये शायरबानी की वजह से होगा। यीशु मसीह फरमाते हैं ये मेरा गोश्त और मेरा खून है, इसे खाओ और पियो और कायम रहो। मेरा दिल नहीं करता, तेरी गाल नहीं, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है ये मेरा गोश्त और मेरा खून है, इसे खाओ और पियो। हालेलुया। और इसके साथ जो तस्वीर जुड़ी है वो बरकत वाली तस्वीर है, और वो जब आपके ऊपर आ जाती है, आपकी जिंदगी के अंदर से प्रॉब्लम्स, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हालेलुया। और जब आपको पता है, सुनिए जरा एक स्टोरी सुनिए जरा। यीशु मसीह जब बैठे हुए थे, सोचिए एक वक्त के लिए, यीशु मसीह जब बैठे हुए थे, शागिर्द साथ बैठे हुए थे सारे, ईमान है जी, सोते नहीं गए, वाक़ देने लग गए। थोड़ा सीखो ना, थोड़ा जरा टाइम दो जरा। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के कौन बैठे हुए थे? यीशु मसीह के साथ यीशु के शागिर्द बैठे थे, और वो शागिर्द भी ऐसे थे कि दुनियावी लाइफ में वो एक दूसरे को कबूल नहीं करते थे। आपको पता है, उनके काम एक दूसरे के मुतजाद थे, मुख्तलिफ थे। मत्ती मसूल लेने वाला था और यहूदा इस्करियोती मसूल लेने वालों का दुश्मन था। हालेलुया। ज़ेलोतीस भी आया था बाद में उनमें, लेकिन वो भी मसूल लेने वालों के दुश्मन थे। पतरस, यकूब, यूहन्ना मछली पकड़ने वाले थे, और मत्ती चुंगी पे बैठ के मसूल लेने वाला था। देखें, वो मछलियां पकड़ते हैं और वो चुंगी पे बैठ के उनसे मसूल लेते हैं। काम एक दूसरे के खिलाफ हैं, चीजें एक दूसरे के खिलाफ हैं, नाराजगी है, लड़ाइयां अंदर। हालेलुया। नजरियात अलग है, सोचे अलग हैं, खानदान अलग है, सारी चीजें अलग हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी यीशु की मेज पे सारे इकट्ठे हैं। यीशु की मेज पे साथ रहिएगा, यीशु की मेज पे। और कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे को ज्यादा चुंगी ते मसूल लेना, आके उस्ताद इन्हों कह जरा मसूल घट करे। नो, सारे इक्वल, और कम की गल है ही नहीं होती। उते बात है सिर्फ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, कि मैं हूं। बात ही हो रहा है। जब आप खुदा के घर में आ जाते हैं तो बातें चेंज होनी चाहिए आपकी। हालेलुया। उसको कहिए कि खुदा मेरे अंदर जो कमी है, जो कमजोरी है, जो प्रॉब्लम है, जो मुसीबत है, जो परेशानी है, मैं तेरे सामने हूं, मैं झुकता हूं तेरे सामने, हाथ बढ़ा, ब्लेस कर मुझे। अपने गुरूर को नीचे कीजिए और यीशु के सामने झुक जाइए। हालेलुया। वो कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं, मैं बातें करना चाहता हूं। और जब आप खुदा की मेज के पास आते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, आप, वो सामने बैठा है और आप दोनों इक्वल होके एक जगह पे बैठ जाते हैं। हालेलुया। और जब आप अशायरबानी में शामिल होते हैं
तो ये मत देखिए कि बांटने वाले का चेहरा कैसा है, ये मत देखिए कि बांटने वाले के कपड़े कैसे हैं, बल्कि ये सोच के आइए कि ये जो दे रहा है वो मेरे यीशु का खून और उसका बदन है। हालेलुया। हमें ये सारी चीजों को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है मेरे अजीजों, और जब हम इसको अपनी जिंदगी में रिसीव करेंगे, फसा का भी मैंने आपको बता दिया हुक्म था, इसी तरह इसके लिए भी यही हुक्म है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो जब तक मैं वापिस नहीं आता। हमें अशायरबानी में शरीक होना है बड़े जज्बे के साथ। कितने लोग हैं जो जज्बे के साथ आज आए थे कैसी शायरबानी से शरीक हो मांगे? जज्बे के साथ आना है हमें, ईमान के साथ आना है हमें। जब पता है कि जी आज फर्स्ट संडे है, या किसी चर्च में सेकंड संडे पे देते हैं, किसी चर्च में थर्ड संडे पे देते हैं, तो अपने कदम को रोकिए ना, बोलो यीशु मसीह की ये ज़ियाफत है। और आपको पता है कि चर्च के अंदर आप किसी भी नस्ल से, किसी भी रंग के हो, किसी भी जगह से आके बैठे हो, किसी भी अगर आपके साथ कोई मेहमान भी आके बैठा है, तो देने वाला कभी नहीं पूछेगा जी आपको तो पहले देखा नहीं है चर्च में, आप आज किधर से आ गए, आपने बपतिस्मा लिया भी है कि नहीं लिया, आपने इतराफ किया भी है कि नहीं किया। क्यों? कि he is not having rights to speak, वो उसको बोलने का हक ही नहीं है। उसको सिर्फ है कि तूने देना है, तू रिप्रेजेंट कर रहा है, तू दे रहा है, तूने सवाल जवाब नहीं पूछने। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि नामुनासिब तौर पे जो लेगा वो मुजरिम ठहरेगा, और जो देने वाला है उसको ईमानदारी के साथ देना है। भाई भी आ गया तो ईमानदारी के साथ, बहन भी आ गई है तो ईमानदारी के साथ, वाइफ भी आ गई है, भावे 50 बारी लड़े हो लेकिन ईमानदारी के साथ। हालेलुया। क्योंकि ये किसकी मेज है? खुदा की मेज है, और उसका बदन हमारे लिए क्या है? तोड़ा गया है। हालेलुया। और हम इस चीज की गवाही देते हैं कि तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया और तेरा खून मेरे लिए बहाया गया, और मैं इसको खाता हूं और पीता हूं क्योंकि ये मेरे लिए तोड़ा गया। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम उसके खून और उसके बदन को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं तो हम गुनाहों की मुआफी पा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें बड़ी गवाही के साथ इसमें शामिल होना है। गवाही क्या है? हाँ जी, गवाही क्या है? गवाहियां होंगी तो बढ़िया सी देने हैं। गवाही की यस, ये गवाही कि तेरा बदन मेरे लिए तोड़ा गया, तेरा खून मेरे लिए बहाया गया, ये गवाही है। हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, उसके पास गवाही है, और वो अपने अंदर गवाही रखता है। और जब हमने खुदा के बेटे के बदन और खून को अपने अंदर ले लिया है तो फिर उस जैसी बातें हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हम गवाही देते हैं कि हमने तेरे बदन को खाया है, हमने तेरे खून को अपनी जिंदगी में पिया है। हालेलुया। और फिर वो हमें कुव्वत देता है, हमें ताकत देता है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमारा चाल चलन ऐसा हो जाए कि जैसा मसीह का था। हमारे अंदर खिदमत वाला दिल हो जाए, हलीमी वाला दिल हो जाए, आजिजी वाला दिल हो जाए, हमदर्दी वाला दिल हो जाए, कबूल करने वाला दिल हो जाए, यगानगत वाला दिल हो जाए, इज्जत देने लेने वाला दिल हो जाए। इसको लेने के बाद जो है हमारे अंदर ईमान और अकीदे जो हैं वो एक हो जाएंगे। हालेलुया। पहले भी मैंने आपको एक चीज बताई है, अभी मैं फिर बताता हूं, लास्ट टाइम ये इसको सुनिएगा बड़े ध्यान से। इसको लेने के बाद, अशायरबानी को लेने के बाद किसी और ईमान और अकीदे और चढ़ावे और कुर्बानी और नजर न्याज जो है उसको खाने की इजाजत नहीं है। जो लोग सवाल पूछते रहते हैं ना, पास्टर जी कितने, बाइबल मुकद्दस बयान करती है जो इसको ले रहा है कि जब आप रास्तबाजी से चल रहे हैं तो हमें बड़े ईमान के साथ इसको रिसीव करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो अशायरबानी जो है हमारा चाल चलन दुरुस्त करने में हमारी मदद करती है। आए इस अशायरबानी की अच्छी तस्वीर को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। ऐ खुदाए पाक रूह, दुआ करता हूं कि तेरे बंदों ने, तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने बड़े ईमान के साथ आज के वचन को, आज के कलाम को रिसीव किया है पिता परमेश्वर। और मैं ईमान रखता हूं कि जितने लोग इस जगह पे बैठे हैं उनके अंदर ये जज्बा है
کہ وہ آج تیری میز میں شریک ہونے کو ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اے خدا پاک روح ان کو بڑی برکت دے، اور یہ برکت ان کی فیملیوں میں اور ان کے گھرانوں میں آنا شروع ہو جائے۔ تیرے لوگ تجھ سے مسا پانے والے ہوں، اور آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت رسیو کرنے والے ہوں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے پا لیتے ہیں، آمین۔